गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ कहीं भी हो, हमारे दिल से आप सभी को वेलकम है। और ये शो जो वॉइस ऑफ मानवता में आज हो रहे हैं, इन कॉन्वर्सेशन विद क्रिस्टीना, यूनिक स्टोरीज ऑफ यूनिक इंडिविजुअल्स। सो हम जैसे हर एपिसोड में ये बोलते हैं, ये चैनल किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की प्राइवेट चैनल नहीं है, ये आपके और मेरे चैनल है। ये मानवता के लिए चैनल है और इस चैनल पे हम सिर्फ जिंदा लोगों की ही इंटरव्यू करते हैं। जिंदा लोग, क्योंकि जिंदा लोग सच बोलते हैं कि वरना चुप तो मुर्दे भी रहना चाहते हैं। तो आज हमारे सामने बहुत ही खास मेहमान हैं। आशीष शर्मा को आप में से बहुत जानते हैं। जितने लोग मुझे नहीं जानते हैं, शायद आशीष शर्मा जी को जानते हैं, बिकॉज ही इज सच एन इंस्पिरेशन टू द यंगर जनरेशन, टू द यूथ ऑफ टुडे। ही इज एन आइकॉन, has created history in the 21st century, and I'm not just saying because he is young, but I really mean it, and he has actually proved it. So, is Ashish Sharma. Let me introduce you to Ashish Sharma. Ashish Sharma, a native of Delhi, is a flame of revolution, constantly burning himself to illuminate the dark, ignored lives of millions of children trapped in India's exploitative evils of child trafficking, child begging, drug mafia business, genetic research, child labor, child sexual exploitation, and several other crimes over marginalized children. He is campaign Unmukt India. He covered 29 states and 7 units by walking on foot for 17,000 kilometers. He is the founder of Hawaiian Foundation and Saffron Umbrella, and mentor for several organizations and startups like Kids Chopper, The Uncivilized India, Entertainment, etc. For his organization, he has set the goal of working in a systematic manner to eradicate these social issues from India by 2026. Just like his selfless character, the scope of his art is boundless. He is working in several writing projects. He is also involved in voicing songs and producing abstract artwork under his domain, Ajnabism. He is looking forward to promote the art of poetry and ballad globally in the coming years. Being the change. If you want to see the change, you should be the change, and that's what Ashish is, the change. He has and he is still bringing the change. Ashish, through this show, I support we all, whoever will be watching it today or in the future, we all support we give you our support, and that's a promise from our end. So Ashish, in brief, can you just tell the audience about yourself? I'm a normal person, like I always say. I'm not doing anything extraordinary right now in my life, but as a medium, maybe universe chose me to do this task, और वो task मुझसे करवाए जा रहे हैं. So I think कि I'm nothing right now, और उस मुकाम पे भी नहीं हूँ कि like I will think कि I'm like an inspiration, but हाँ जो effort मैं डाल रहा हूँ शायद it is helping a lot of people right now in their life. So मैंने 9 बच्चों को रेस्क्यू किया था फ्रॉम चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड बैगिंग, बट एक सर्टेन पॉइंट पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम सिर्फ पूरी लाइफ में सिर्फ अच्छा काम करना चाहते हैं या फिर गलत चीजें खत्म करना चाहते हैं. तो ये दोनों ही पाथ बहुत डिफरेंट है, बट जनरली हमें ऐसा दिखाया गया है कि सिर्फ आप अच्छा काम करते रहिए एंड धीरे धीरे वो बुरे काम खत्म हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता. गलत चीजों को खत्म करने का पाथ बिल्कुल डिफरेंट होता है, एंड यू कैन कीप डूइंग द गुड डीड्स, उसका कोई अंत नहीं है अच्छे काम करने, बट गलत चीजें खत्म करने के लिए वी नीड टू टेक अ स्टैंड. सो 22 अगस्त 2017 को मैंने जम्मू कश्मीर से यात्रा की शुरुआत की थी. उन्मुक्त इंडिया के नाम से कैंपेन था. तो उन्मुक्त का मतलब होता है जो चीज बंधी हुई ना हो, आजाद हो एक तरीके से. एंड समवेयर आई फेल्ट कि साइकोलॉजिकली ये वाली जनरेशन बहुत ट्रैप्ड है. हम चीजें एक्सेप्ट नहीं करते, हर चीज में जजमेंट्स है एंड अ लॉट ऑफ इश्यूज वी आर फेसिंग. सो उन्मुक्त इंडिया मेरे हिसाब से एक वो भारत का सपना है जहाँ पे मैं देखता हूँ कि हम साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड नहीं है किसी चीज पर. वी एक्चुअली कैन सी कि क्या दिखाया जा रहा है, और हम उस चीज को वैसे ही देखें जैसे वो चीज होती है. उसके अंदर कुछ मतलब अपनी तरफ से हम दिमाग न लगाए, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक की पुशिंग देयर ऑन इंटरसेप्शन या एक परसेप्शन को अपना पुश कर देते हैं. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. अगर आसमान है तो आसमान को आसमान देखो, चांद है तो चांद को चांद, और इशू दिख रहा है तो उस इशू को इशू की तरह ही देखो, बट ट्राई टू एंड दैट इशू. राइट.
सो जम्मू कश्मीर से मैंने पैदल चलना स्टार्ट किया था और जम्मू से होते हुए फिर मैंने जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दमन, दीव, सिलवासा, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दिस इज एंटायर इंडिया आई कवर्ड ऑन फुट 70,000. इट वाज 22 month जर्नी और लर्निंग बहुत ज्यादा मिली मुझे. लाइक आई नेवर थॉट लाइक माय लाइफ विल चेंज इन सच अ वे या फिर इतनी नॉलेज और विजडम मिलेगा जिस फेज से मैं अभी राइट नाउ आई एम गोइंग ऑन राइट नाउ. तो लर्निंग काफी मिली मुझे एंड आई एम हैप्पी समवेयर कि हाँ एक पर्पस के लिए लाइफ जी रहा हूँ. दिस इज नॉट लाइक अ नॉर्मल लाइफ नहीं है कि सिर्फ जॉब करनी है, खाना खाना है, सो जाना है. मतलब उस लाइफ से थोड़ा ऊपर उठ चुका हूँ. आप ये बताइए, आप ये जब जर्नी स्टार्ट किए थे क्या लगा था आपको वो डिवाइन लाइट जो बोलते हैं एक इंस्पिरेशन होती है, या फिर आप क्या सोचे थे ये वॉक स्टार्ट करने से पहले? What was your source of उससे पहले तो डर थे सिर्फ मेरे अंदर. Like I was not having this much courage right now like I am having right now. So even if I talk first day मुझे किसी स्कूल ने अलाउ नहीं किया, किसी कॉलेज ने अलाउ नहीं किया. Like I can go and meet those people. और रहने के लिए जगह नहीं मिली फर्स्ट डे. Like these are the things I faced. फिर 50 किलोमीटर लाइक फर्स्ट डे आई वॉक 53 किलोमीटर और 53 किलोमीटर के बाद रात को 11:30 बजे कुछ नहीं मिला. एंड फिर कपड़े भी धोने हैं. मतलब स्टार्टिंग के अंदर इतनी सारी टेंशंस थी, कहीं पे सामान रख दिया, कोई उठा के भाग गया. लाइक देवर सो मच फियर्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी. बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई, माय फेथ वाज इंक्रीज्ड. सो समवेयर आई लर्न कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज आपकी इंटेंशन होती है और एक आपकी उम्मीद होती है. ये दो चीजें ऐसी थी कि थ्रू आउट माई लाइफ और थ्रू आउट दिस जर्नी I was able to actually understand कि एक छोटी सी उम्मीद आपकी जिंदगी में क्या कर सकती है, एक छोटी सी प्योर इंटेंशन आपको कहाँ से कहाँ लेके जाए. So I totally say कि Lord Krishna chose me and it is His vision only somewhere कि I'm able to walk this much या मुझसे वो काम करवाए जा रहे हैं. So I just feel कि वो अपने तरीके से चीज़ों को चुनते हैं और हमारे सामने बस रखते हैं और वो हम पर हम एक्सेप्ट करते हैं या फिर शिकायत करते हैं. So right now I'm much about the complaints scenario और मैं चीजें एक्सेप्ट करे जा रहा हूँ तो चीजें हो रही हैं. आप जब जर्नी स्टार्ट किए थे, आपको स्टार्टिंग में यू वर लाइक यू हैड अ लॉट ऑफ फियर्स इन यू, क्या होगा अगला स्टेप, क्या होगा अगले, कहाँ पे मैं पहुंचूंगा. तो कभी ऐसा लगा कि मतलब अरे नहीं बहुत हो गया, अब वापस लौट चलता हूँ? नहीं, ऐसा हुआ है मेरे साथ. लाइक इट हैपेंड मोर देन 7 times इन बिटवीन द जर्नी कि मैं घर वापस आना चाहता था एनी हाउ. इट वाज लाइक कि वो बहुत हो चुका, मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ. बट इस जर्नी के अंदर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए. लाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि आई वांट टू क्विट इट, ये जम्मू कश्मीर की बात है. तो मेरे सामने मुझे एक पेड़ दिखा. उस पेड़ ने एक पहाड़ के अंदर एक होल किया हुआ था और वो पेड़ बिल्कुल खोखला था. तो लाइक दीज आर द थिंग्स एक्चुअली कि मुझे लगा कि वो नेचर मुझसे बात कर रहा है नेचर के थ्रू. तो मुझे लगा कि नो मैटर हाउ मच होल यू आर हैविंग इनसाइड यू, आप इतने खोखले हो चुके अपने लाइफ में, बट स्टिल देयर इज अ होप एंड करेज जो आप पहाड़ों को भी तोड़ सकते हैं. तो अगर एक पेड़ पहाड़ों को तोड़ सकता है तो छोटे से डिटरमिनेशन से हो सकता है मेरी जर्नी तो मैं कम से कम पूरी कर पाऊँ. सो इस जर्नी में ऐसा हमेशा हुआ मेरे साथ कि व्हेनेवर आई वांट टू क्विट दिस जर्नी तो मेरे सामने नेचर की कुछ ऐसी चीजें दिख जाती थी मुझे जो दोस्त यूज्ड टू टॉक टू मी, हैव अ कन्वर्सेशन विद मी, और मुझे लगता था कि मैं अकेला कभी रहा ही नहीं जर्नी. भले टास्क बड़ा मुश्किल था, मुझे पता है बड़ा चैलेंजिंग था कि आप अकेले चल रहे हो, परमिशंस नहीं होती थी, आपको ये नहीं पता अगले दिन क्या करना है, कहाँ जाना है, खाना पीना रहना. फिर आई मेट मोर देन 17 गवर्नर, सीएम्स, इन सब चीज़ों से परमिशन लेना. बट सर्टेन वाज देयर कि एक होप और फेथ एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ करवाती है. एंड आई थिंक जब हम अपने आप को खो देते हैं कहीं ना कहीं तो हम वो होप खो देते हैं. बट द मोमेंट यू रिगेन योरसेल्फ तो उसके बाद शायद आप जादू हो जाते हैं. ये मतलब आपने बहुत ही कहा है, कभी नहीं चाहिए. तो आप ये बताइए, आपकी जब जर्नी कंप्लीट हुई, ये ऑलमोस्ट 22.5 months का जर्नी था. ये कितना लंबा जर्नी चला ये आपका? 22 months. 22 months का जर्नी था, ठीक है. तो मतलब रास्ते में आपको कैसे बाधाएं मिली जिसको आपने ओवरकम किया अपना उस छोटी सी उम्मीद को लेकर? प्रॉब्लम्स तो मैं मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से प्रॉब्लम आई है ऐसा नहीं है, और प्रॉब्लम्स आज भी आती है ऐसा नहीं कि, बट एक लेवल होता है
तो प्रॉब्लम आने से ज्यादा जरूरी था कि उस प्रॉब्लम को उसी समय में एक्सेप्ट करना जब वो प्रॉब्लम मुझे मिली। तो लाइक अगर जो मेरे नोन है या फिर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल नो मी लाइक, तो दे नो कि अभी मुझसे अगर कोई कन्वर्सेशन करता है तो एक एक्सेप्टेंस वर्ड है जो मेरी कन्वर्सेशन हमेशा निकलता है। तो इस वर्ड को शायद मैं जी रहा हूँ हर दिन कि जो चीज आपको जब मिलती है उसी चीज को उसी समय में एक्सेप्ट करते हैं, बट हम लोग उन चीजों को डिले कर देते हैं। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अगर मान लीजिए कोई गलती हो भी रही है, हमसे कोई गलती होगी तो जस्ट एक्सेप्ट इट देयर इटसेल्फ, या कोई प्रॉब्लम अगर लाइफ में आती है तो उसको उसी समय पे एक्सेप्ट कर लिया जाए एंड वी जस्ट फाइंड द सॉल्यूशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम प्रेजेंट कॉल को इग्नोर करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। तो खाना रहना सब कुछ इश्यूज रहे हैं, बट मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज थी कहीं ना कहीं जो मुझे कंटिन्यूसली गाइड करती थी। आई वाज हैविंग अ ब्लाइंड फेथ ऑन दैट पर्टिकुलर पावर समवेयर यूनिवर्स को रन करती है एंड इट हैपेंस। 22 महीना बहुत लंबा समय होता है, सो इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 years, क्योंकि साल में तो 12 महीने ही होते हैं, 2 साल में 24 और 2 महीने कवर के लिए 2 साल लग गए आशीष को। और ये चीज उन्होंने कर दिखाया है। वो कहते हैं ना, मन में अगर कुछ ठान लो तो आप किसी भी मंजिल को छू सकते हो, किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो ये बहुत ही जज्बा होना चाहिए आपके अंदर भी कुछ करने के लिए। तो आशीष ये बताइए, जब जर्नी कंप्लीट किए, the last day of your journey or the second last day of your journey, क्या फीलिंग्स थी आपके अंदर? सबसे पहली चीज ये थी, मुझे सब चीजें वेंट आउट करनी थी, क्योंकि अगर मैं चीजों को बिना वेंट आउट करे अपने घर पे जाता तो शायद मैं बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। क्योंकि 22 महीने मैंने हर दिन वही दिन जिया है जो मैंने पहले दिन जिया है। तो 22 महीने मैटर नहीं करते। 22 महीने मैंने हर दिन सेम तरीके से खाना खाना, सेम तरीके से लोगों से मिलना, सेम तरीके से सब कुछ, और उसके बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ में आना, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट थिंग आई थिंक होती है। तो लास्ट के 2 दिन आई वाज एट वृंदावन। तो नियरली 140 किलोमीटर की अराउंड जर्नी मैंने छोड़ दी थी। तो चेन्नई से वृंदावन आई केम बाय ट्रेन, और 2 दिन मैं वृंदावन में अकेला रहा बिना किसी से बात किए हुए, एंड एट दैट टाइम इट वाज होली। तो 2 दिन मैंने हर चीज को ऑब्जर्व किया अपने अंदर ही अंदर कि 22 महीने जैसे गए, इट वाज अ डिफरेंट थिंग। तो लास्ट के जो 1.5 दिन की जर्नी थी, देन आई अगेन केम बैक टू दिल्ली बाय वॉकिंग ओनली। तो ऑब्जर्व करना भी बहुत सारा जरूरी है, और चीजें मुश्किल होती है, बट कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे बाय डिफॉल्ट मिली, चाहे उसको आप शक्ति बोल लीजिए या फिर आप उसको एक एनर्जी बोल लीजिए, बट देयर वर फ्यू थिंग्स आई गॉट ड्यूरिंग दिस वर्क। तो एक है कि एक इंटेंशन अगर आपकी है कि आप अच्छा काम करना चाहते हो, तो एवरी फोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स विल हेल्प यू टू डू दैट। बट उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ती, कि आपको पता होना चाहिए अगर आपके मुख से कुछ चीजें निकल रही है तो दिस इज नॉट यू, सम फोर्सेस वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन। या फिर मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ सिचुएशन सर्कमस्टांस हैपन हो रहे हैं, तो आप सिर्फ उसके भोगी हैं, आप सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिस थिंग हैज टू हैपन फ्रॉम यू, और आइदर दिस थिंग हैज टू हैपन टू यू, बट आप उसको एक्सेप्ट कीजिए उसी समय। देयर इज नो नीड टू गेट इनटू द डिप्रेशन, देयर इज नो नीड टू स्टार्ट मेकिंग जजमेंट, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे होने वाला है। ये चीज हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ उस इमोशन को उस समय पे जिए, दिस मैटर्स द मोस्ट। उसके बाद अपने आप को सरेंडर करना, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक चीजें स्टार्ट करते खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि सरेंडर नहीं कर पाते हैं अपने। तो फिर हम जब हम सरेंडर करते तो आपको फ्लो में रहना पड़ता है। तो a lot of people keep making complaint कि यार मैंने एफर्ट डाले, ये चीजें नहीं हो पाई, बट उस फ्लो को कंटिन्यूअसली रखना पड़ता है जब तक वो आपको फाइनल आउटपुट ना मिले। तो मैटर ये नहीं करता हम किस कम्युनिटी से हम क्या कर रहे हैं, एट द मैटर अब ये करना चाहिए हमारे देश के अंदर कि हाँ, ये वाली जनरेशन मुद्दे खत्म करने पे बात करती है, ये वाली जनरेशन अबव पॉलिटिक्स उठना चाहती है, ये वाली जनरेशन अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करे और सोचे कि हमें इशू खत्म कैसे करना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू एक्सेप्ट राइट नाउ। वरना हमारे दादा दादी पेड़ पौधे लगाते थे, माँ बाप को पेड़ पौधे लगाने पड़ रहे, आज हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ रहे, कल को हमारे बच्चों को लगाने पड़े। लाइक व्हाई दिस थिंग्स आर लाइक गोइंग ऑन दिस इन दिस सच अ वे, क्योंकि हम चीजों को मैग्नीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वी नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि वी नीड टू एंड एन इशू नाउ। तो यहाँ से एक अलग जर्नी मिलती है हम लोगों को, एंड दिस नीड टू बी एक्सेप्टेड समवेयर। राइट। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? इज माय हाँ, मैं वॉइस सुन पा क्लियर? रहा हूँ, बट हाँ, बट आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी।
अभी आवाज ठीक आ रही है क्या? I can Is it hear any you, but better? not that much clear. Is it any better now? Yeah, it is better now. Right. So sorry. ये आपको इतना स्ट्रेस करना पड़ा आवाज सुनने के लिए. So what I wanted to know, आप किन किन लोगों से मिले हो अपने जर्नी में? ऐसा कोई मतलब एक इंसान या दो या तीन या चार ऐसा कोई हो जो आपको अपने ही में इंस्पायर किए हो, या फिर आपको मतलब नेगेटिव वाइब्स आए किसी से, या फिर इंस्पिरेशन आया कि अरे बहुत अच्छा है, मतलब आप ऐसे कर रहे हो. कैसे कैसे लोगों से आप रास्ते में मिलते गए? मुझे लगता है कि मतलब मैं इट इज जस्ट अबाउट अ जजमेंट थिंग कि जो मिला उसने इंस्पायर किया है. मैं ये नहीं कह रहा कि आज क्योंकि जब आप एक छोटे से सर्कल से चीजों को देखते हो तो सर्कल बड़ा छोटा दिखता है, बट जब आप उसी चीज को बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको लगता है कि हर एक नेगेटिव पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करता है. तो मैंने कुछ चीजें ऐसी सीखी थी कि अगर मैं अपने आप को हक दे देता हूँ कि सम अदर पर्सन कैन इंस्पायर मी, तो द सेम पर्सन कैन डिमोटिवेट मी. तो अगर मैं टूटूंगा तो अपनी मर्जी से टूटूंगा, और मैं हिमालय बनूंगा तो अपनी मर्जी से बनूंगा. दिस इज समथिंग दैट आई लर्न. सो दिस एक सेल्फ लव होता है जो मैंने सीखा कि एक प्योरली सेल्फ लव होता है, क्या एक इन्वॉल्वमेंट का कॉन्सेप्ट है. सो मुझे लगता है कि हर पर्सन मेरे लिए इंस्पिरेशन है. अगर कोई टूटा हुआ है तो वो भी इंस्पायर कर रहा है, अगर कोई आज कुछ अच्छा काम कर रहा है वो भी इंस्पायर कर रहा है. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है राइट नाउ, और अगर मैं अपने एफर्ट कम कर दूं राइट नाउ तो शायद मैं अपने आप को भी इंस्पायर ना कर पाऊं. तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट डे जो पहला पर्सन मुझे मिला होगा और जो एंड तक मुझे मिला होगा, एवरीवन वाज इंस्पिरेशन समवेयर. बट रजनीकांत सर को 3 हक करना, मुझे लगता है कि दैट वाज अ मोमेंट टू मी. काफी सारे गवर्नर्स बहुत प्यारे हैं, मतलब कि थ्रू आउट इंडिया अगर आप गवर्नर से बात करते हो तो काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है कि लाइक हाउ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग, हाउ दे वांट टू ब्रिंग अ चेंज ऑन इन इंडिया, या फिर चेंजेस आ क्यों नहीं रहे. तो कमल हसन सर से मिलना हुआ, ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन. तो काफी सारी चीजें हैं, बट मेन चीज है कि आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जो चीजें आपको मिलती है जाता है. So that acceptance is something that we need to hold strongly. This is a very big word, if I may say, that acceptance. Acceptance is a very, very big word. So I have written something saying that, I am not scared of rejection. Now at this point I don't think so. I'm having any fears in me right now. The only focus I'm having right now to ensure कि मेरे देश का लास्ट बच्चा भी स्कूल जाए. इन बिटवीन दिस मुझे नहीं लगता कि मुझे रिजेक्शन से डर लगता है या फिर मुझे किसी चीज से डर लग रहा है राइट नाउ. द ओनली फियर आई एम हैविंग राइट नाउ इज टू लूज माई सेल्फ. अगर मैंने अपने आप को खो दिया तो मैं बहुत कुछ चीजें खो चुका हूँ. चीजें हैं तो मैं जो यकीन की लाइक आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, बिकॉज़ रिजेक्शन तो मुझे बचपन से मिलते आए हैं. अब एक्सेप्टेंस से डर लगने लगा है कि लोग एक्सेप्ट करके तो तहे दिल से करते हैं, क्योंकि वो रिजेक्शन कहीं ना कहीं दिमाग में चलते रहता है. सो आप इतने सारे कॉजेस के लिए काम किए हैं. I just have a very personal question that I would like to ask you. Have you ever thought, like today, even though after, I think you're speaking, are you able to hear me clearly? Yeah, I can hear you, but voice is not that much clear. Okay, now is it better? Yeah, it is better. Okay. So what I am trying to say is that we are in the 21st century and still people are so ignorant about certain things. Like, for example, I'm not sure how much you know about me, but I'm a trans woman who has come out in this world and who has fought for herself to get the love that I deserve, get the respect that I deserve in the society, that acceptance. So, आज के टाइम पे ये LGBT कम्युनिटी के जो कितना इश्यूज हो रहा है, कभी आपने सोचा है इस पे भी कुछ करना चाहिए, बिकॉज वो सोसाइटी right now I will tell you something कि in Thane we are trying to set up a school right now, and that school will be purely dedicated to the entire trans generation. So हम लोग कुछ स्कूल सेटअप करना चाह रहे हैं. हम चाहते हैं कि इवन एक स्पोर्ट्स स्टेडियम हो ट्रांस पूरे परिवार के लिए, एंड दैट वो लोग भी मेडल लेने आने के हकदार है. ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रांस के पास अगर एक पर्सन है, दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग दैट इज मेड बाय गॉड. वो एक छोटा नॉर्मल सा प्रोसेस है यार, वो कुछ अलग नहीं है. दिस इज लाइक अब तीन ही चीजें हो सकती थी, आइदर
मेल बनता, फीमेल बनता है, ट्रांस बनता। तो ये तीनों चीजें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे करोड़ों सालों के बाद भी, तो समवेयर वी नीड टू इंट्रोस, मतलब हमें खुद के अंदर झांकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जो एक्सेप्टेंस है, दिस इज ए नॉर्मल प्रोसेस। अब आप एक नॉर्मल चीज आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो उसमें कोई भगवान नहीं आएगा स्पेशली आपको बोलने के लिए कि ये मेरे ही बच्चे हैं, बोलने के लिए। यू हैव टू सी जस्ट दे आर लाइक अस। जितनी इमोशंस हमारी होती है उतनी इमोशंस ट्रांस परिवार की भी होती है। तो लाइक एक सिंपल सा प्रोसेस, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो हम शायद हो सकता है कि तीनों लोग मिलके हम बेटर कम्युनिटी बना सकें, या हम एक बेटर दुनिया बना सकें। तो ये प्योरली एक्सेप्टेंस ही एक ऐसा वर्ड है, मुझे लगता है कि जो इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे इश्यूज को खत्म कर सकता है। बट पूरी स्कूल टाइम, पूरा कॉलेज टाइम, पूरा आप जॉब निकाल देते हैं, बट उसके बावजूद भी एक छोटा सा एक हिस्सा है जो आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो समवेयर वी नीड टू अगेन रीबिल्ड द एजुकेशन सिस्टम, कि वो एजुकेशन सिस्टम हमें चीजों को एक्सेप्ट करना सिखाता है। ये एक्सेप्ट आप जब जर्नी स्टार्ट किए थे, क्या आपको जरा भी भनक थे? आई मीन, डिड यू नो even you had a slightest of idea, did you have slightest of idea that the journey you're going to meet Rajnikant sir, you're going to meet Kamal Hassan? I think you've also met Akshay Kumar, if I'm not mistaken. No, I didn't meet him yet. Okay, but you have met the president. Yes, I met the president. Yeah. So how does it feel? Were you this famous when you were back in town before starting this journey? और you know, I mean, मुझे नहीं लगता कि एक फेमस वाला को इसको कोई पर्सपेक्टिव है। लाइक आई एम रनिंग अ कोर्स राइट नाउ। अगर मेरी आवाज बुलंद होती है किसी भी माध्यम से, तो आई विल यूज दैट मीडियम। फिर दूसरी बात ये कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरी जर्नी में आगे क्या होने वाला है, बट जो चीज मुझे मिलेगी आई विल एक्सेप्ट। दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस इज एक्सेप्ट। तो प्लानिंग कुछ नहीं है, रैंडमली अगर कुछ चीज मुझे मिल जाती है तो आई एम हैप्पी विद दैट, नहीं मिल रही है तो आई एम हैप्पी विद दैट, बट शिकायतें नहीं है वहाँ पे। बट हाँ, इस पूरी जर्नी के अंदर आई वांटेड टू मीट ओनली 2 celebrities. One was Kamal Hassan sir, one was Rajnikant, and I met both of them easily. It was not a hard task for me, but मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान का रोल काफी रहा इस पूरी जर्नी के अंदर। मतलब एक दिन भी, एक समय भी ऐसा नहीं था कि कृष्ण भगवान मेरे साथ नहीं थे। इवन इफ आई मेट रजनीकांत सर, तो समवेयर कृष्ण भगवान का काफी रोल था उसके अंदर। और मुझे नहीं पता कि वो एल्गोरिथम्स कैसे लिखे जा रहे थे कि आई विल बी एबल टू मीट देम सो इजीली, क्योंकि a lot of people like wanted to meet them from years, decades, but नहीं मिल पाते, and I was able to have lunch at his home. So I think कुछ जादू होता है सच में, and it worked for me. Nice. जी मेघा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो आशीष शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ भाई, आपने जो काम किया है ये काबिल तारीफ है। और बहुत कम लोग हैं ऐसी हिम्मत रखते हैं जो मतलब कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात तो ये है कि देखो, हम इसमें जो वाइस मानवता जो चैनल है हमारा, ये कृष्ण ने बता दिया भाई, हमारा केवल किसी एक इंसान का नहीं, इंसानों का जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए आवाज उठाते हैं, गधों के लिए नहीं है जो बोले झूठ बोलकर लोगों को लूटते हैं और परेशान करते हैं लोगों को, उनके लिए नहीं है। तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो जिंदा इंसान उन्हीं को मानते हैं, जो सच बोलना जानते हैं, जो ईमानदारी से काम करना जानते हैं, जो लोगों को सही दिशा में ले जाना जानते हैं। जो आपने काम किया उससे पता नहीं कितने लोग मतलब सीख करके आगे निकलेंगे, उसको जीवन में अपनाएंगे। और ये हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसी आप आने वाले वक्त में करते रहेंगे। पर ये आपने ये साबित करके दिखा दिया कि कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ इंसान का इरादा अगर बुलंद हो जाए तो आधे काम तो वैसे हो जाते हैं। आज भी इरादा कर देता है। तो हमने इस पर शायरी लिखी थी, को मैं उसे सुना देता हूँ सबको, लेकिन आपको सुना देता हूँ कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों वह मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। बस आशीष शर्मा जी, ये काम आपने जो किया है, मतलब इसको देख करके लोगों को लगेगा भाई जब ये काम हो सकता है तो फिर कौन सा काम रह सकता है, कौन सा काम हो सकता है। आदमी का इरादे होने चाहिए थे। तो हमारी तरफ से वाइस ऑफ मानवता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया सर। और जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना है आशीष जी का स्टोरी, और कैसे वो खुद में ही इतना इंस्पायर्ड हो कि ये स्टेप लिए कि जर्नी कंप्लीट करी, उन्होंने कंप्लीट भी किया है। वो कहते हैं उनकी आवाज अभी तक नहीं पहुंची है, तो इस माध्यम से, ये वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से, ये न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे ही गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को जितना आप शेयर कर पाए शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे। Ashish, I would like to let you know this
Voice of Manhattan news channel is in the USA. So he was telecast also. We watch it. I cannot assure guarantee कितने लोग देखेंगे, पर वो उम्मीद है कुछ भी भी है। तो जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी अगला, जैसे अभी मैं बहुत लोगों के साथ जुड़ती हूँ, काम करती हूँ। I don't know, I'm sure you don't know much about me, but I do a lot of social work with NGOs. One such NGO would be which is Samkaji. Your voice is not clearly audible. अभी ठीक है क्या? Is it okay? I can hear it now. So I work for this NGO called Humanity for You and Me. Okay? हम इसमें क्या करते हैं? We educate the children living in the slums. Obviously सभी यूथ है जो काम कर रहे हैं, तो सब मतलब इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन we have organized classes, and even for the women we have organized stitching, beautician course and stuff like that. So we try to inspire, we try to help the society. But at the same time जब मैं जाके करती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो educated हैं, जो कहते हैं कि मेरे पास आने से वो कतराते हैं, अच्छे वाइफ के मेरे को डर लगता है। Why do people fear trans men or trans women? मतलब ये डर क्यों है लोगों के अंदर? I mean, if you know I think मैं मतलब एक पहलू पे बात करता हूँ, लाइक कि ट्रांस कम्युनिटी के अंदर राइट नाउ दो लोग हैं। एक है जो नेचुरल तरीके से हैं, दूसरे वो है जो अपने डर के कारण पैसे उगाई कराते हैं रेलवे स्टेशन पर, या एक जो गैंग चलता है इन लोगों का। तो वो आपको ही पता है कि एक ऐसा माफिया भी है ट्रांस का, जो लोगों को अपना डर दिखा के पैसे ऐंठता है। लाइक आप ट्रेन के अंदर जाएंगे कि कोई अगर अपनी मर्जी से देना चाहे तो दिस इज समथिंग लाइक कि वो दुआएं होती है। तो जो एक्चुअल में ट्रांस होता है वो आपको आप 1 रुपया भी उसके हाथ में रखते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बट व्हेन दिस पीपल आर लाइक कि कंपल्सरी लेना ही है पैसा, तो लाइक एक जो माहौल बना दिए कि कोई लड़का दिखता तो आ रहे चिकने पैसे देके जा, लाइक इफ दिस सम गर्ल, लाइक वो ये भी नहीं सोचेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो गुंडागर्दी वाला एक सिनेरियो है उसने माइंडसेट को ऐसा बना दिया है। लाइक आई हैव मेनी ट्रांस फ्रेंड, अच्छे वाले मेरे फ्रेंड है, ऐसा नहीं है। और जब मेरी एरिया के ट्रांस मेरे घर में आते तो दे व्हेनेवर दे कम दे कॉल मी लाइक ब्रदर, ठीक है, घर पे चाय पी के जाते हैं, दे गिव मी अ डिफरेंट रिस्पेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे और बुरे वाले जो चीजें है वो हर एक जगह है। तो जो बुरे वाले लोग हैं वो शायद बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जो अच्छे वाले उनका प्रभाव बड़ा कम दिख रहा है। लाइक आप जैसे एग्जांपल सेट कर रही है तो वो एग्जांपल हर घर तक नहीं पहुंच पाता। और जो बुरे वाले लोग हैं, अब क्योंकि लोग जो ट्रेवल कर रहे हो वो रेड लाइट पे दिख रहे हैं, तो हर दिन उनको वो बुरे एग्जांपल ज्यादा दिख रहे हैं कंपैरेटिवली अच्छे एग्जांपल। तो जब तक वो एक चीज हम चेंज नहीं करेंगे, लाइक वो एक्सेप्टेंस वहां पे भी नहीं आएगी, तो मुझे लगता है कि ये डर बना रहेगा कहीं ना। बिल्कुल सही बोले आपने। So that's why I say to see the change, let's be the change. अगर बदलाव देखना है तो खुद को बदलिए, समाज या इंसान के नजरिया नहीं, अपनी सोच बदलिए, और तब हम जाके कुछ कर पाएंगे इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, अपने लिए। आप पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद सोसाइटी से ये कीजिए कि वो आपको एक्सेप्ट करे। आप अगर खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है किसी और को भी आपको एक्सेप्ट करना। सो आशीष, अब आप ये बताएं, आप पोएट्री भी लिखते हैं, डू यू हैव एनीथिंग फॉर आवर ऑडियंस? एक छोटा सा गाना सुना देता हूँ। लाइक इन बिट, मतलब मैं ओल्ड एज होम काफी जाता हूँ, तो एक चाचा नेहरू की सेक्रेटरी रही है, तो शी इज पास अवे राइट नाउ, बट शी वाज वेरी क्लोज लाइक अ ग्रैंडमदर टू अस। तो एक गाना उनके लिए लिखा था कि बात जिंदगी क्या रात जिंदगी दिल भी अजीम ढूंढ मेरे बात जो रूप है हंसी हंसी खिली हंसी 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 खिली हंसी हंसी बीता बीता यौवन बीता बीता बचपन मालूम ये कहाँ गलियों में वो मन दादी से मिलना दादा से मिलना मालूम ये कहाँ वो खट्टी पतंग। लाइक a lot of things I keep rhyming, singing and चलता रहता है। आप ये बताइए, आप जैसे I would like to thank Siddharth
जिसने इंट्रोड्यूस किया आपको मुझसे एंड वी कुड कनेक्ट. Thank you, Siddharth. If you are there, I really love you a lot as a child, as my son. And you're truly a blessing, full of talent. So thank you so much for being so honest in life, full of humility. आशीष को कनेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप सिद्धांत जी कैसे मिले? सिद्धांत इन बिटवीन जर्नी ही मिला था मुझे. तो इन बिटवीन में 17,000 किलोमीटर मेरा परिवार अच्छा खासा मिला मुझे. तो लाइक ही इज वन ऑफ अस नाउ एंड ही इज हिमसेल्फ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन. तो मुझे लगता है कि लाइक आने वाले समय में शायद सिद्धांत काफी अच्छे लेवल पे काम कर रहा होगा एंड ही विल बी इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल इन दिस लाइफ. अभी भले लाइफ थोड़ी स्ट्रगल भरी है बट हर एक आर्टिस्ट को एक स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है एंड आई डोंट थिंक सो. मतलब एक सेक्रीफाइस की जो कीमत हम इस समय समझ सकते हैं वही चीजें जो हमें आगे जीना सिखाती है, हमें एहसास दिलाती है कि हम जिंदा रह गए. सो पीपल लाइक मी, सिद्धांत, यू, वी आर एवरीवेयर समवेयर एंड वी ऑल नीड टू कम टुगेदर राइट नाउ कि हम लड़े और एक दूसरे को लड़ना भी सिखाए. क्योंकि युद्ध में हमेशा हम थक जाते हैं कभी कभी. तो अपने साथ जो अंदर युद्ध चल रहे हैं कम से कम हम एक दूसरे को थकने ना दें. नो मैटर हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट बट कम से कम हम एक दूसरे को थकने ना दें. आपका नेक्स्ट जर्नी है या फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ में वो क्या है, क्या आप शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ? ऐसा आप क्या करना चाहते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि और भी लोग आपसे जुड़े और आपके साथ दें इस चीज में? राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू सेट अप 4 schools in some different states. तो मोस्ट प्रोबेबली वो जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा. लाइक राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन नैनीताल एंड 3 more states. प्रोसेस चल रहा है राइट नाउ एंड इसके बाद एक वॉक और होगी मेरी. उस वॉक के अंदर आई डू एंश्योर कि पूरे देश के अंदर से हर घर से कम 2 लोग पैदल चल रहे हैं. तो दैट वॉक इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस वॉक ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ. सो उसके लिए भी तैयारियां चल रही है राइट नाउ एंड सब कुछ कृष्ण भगवान के ऊपर है. आई विल लीव इट ऑन दोस फोर्सेस ओनली. वो जब आज्ञा देंगे तो द थिंग्स विल गो ऑन. बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स. तो सीख रहा हूँ मैं भी काफी सारी चीजें. बट इतना एंश्योर है कि अगर मुझे चुना गया है, अगर मेरे थ्रू ये सब चीजें होनी है तो आई डू एंश्योर कि हमारे देश का हर बच्चा स्कूल जरूर होगा 100%. तो ये एनर्जी जब तक ऐसे ही चलती रहेगी एंड दिस वोंट एंड समवेयर. So you believe that you're the chosen one? Everyone is chosen one, even you are the chosen one. And even whosoever is like listening right now, they are also the chosen one. So we all have a reason to be where we are today. मुझे लगता है यहाँ पे एक एल्गोरिदम होता है यूनिवर्स का. लाइक यू कैन नॉट चूज एनीथिंग फ्रॉम योर साइड. आप सिर्फ उस जर्नी के छोटे से हिस्से को देखते हो और आपको लगता है कि यार हाय तौबा मेरे साथ क्या हुआ. बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट सम मैजिक हैपेंस. बट हम लोग इतने जजमेंट से भर चुके हैं कि हम मतलब हर चीज में पहले अपना दिमाग लड़ाना है कि यार कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है. तो हम लोग सोच ही नहीं पाते. बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट समथिंग तो जादू होता है सच में. बट जो हमेशा डाउट से भरा रहेगा उसको कभी जादू दिखेगा भी नहीं. तो जो आज कन्वर्सेशन कर रहा है, तो कन्वर्सेशन का लाइक मुझे लगता है कि कन्वर्सेशन इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है. बट हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो डरते हैं कि यार वो लड़का क्या सोचेगा, वो लड़की क्या सोचेगी अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या फिर वो ट्रांस क्या सोचेगा कन्वर्सेशन कर रहे हैं. तो हम खुद इतने जजमेंट से भर गए हैं कि हम डरते हैं कि यार हाउ द पर्सन विल रिएक्ट. हो सकता है कि एक छोटी सी कन्वर्सेशन के बाद इतने खूबसूरत रिश्ते स्टार्ट हो जाए जो हम कभी सोच नहीं सकते थे. बट हम डरते हैं छोटी छोटी कन्वर्सेशन से क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं लाइक चीजों को, सर्कमस्टांस को, सिचुएशंस को. व्हाई द सर्कमस्टांस हैपनिंग, व्हाई द सिचुएशंस आर गिविंग टू अस. So we should maintain that उम्मीद somewhere, we should maintain that fear somewhere, और हम चीजें accept करें बिना judgment के. So you wanted to eradicate a lot of stuff, okay, which includes child labor, child trafficking, early marriage, and education system where children are, working but they're not getting education. इन सब चीजों पे वो स्टार्ट किए थे अपने जर्नी. आप जब से स्टार्ट किए और अब तक what are the changes that you have seen? जब इस इम्पैक्ट के बारे में बात करता हूँ, लाइक आई स्टार्टेड दिस मूवमेंट एंड एवरीथिंग. तो इस मूवमेंट के बाद देश के अंदर लाइक राइट नाउ मोर देन 18 पीपल आर वर्किंग थ्रू आउट इंडिया विद डिफरेंट कोर्सेज. और ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट है. लाइक मेरे इस जर्नी के बाद काफी सारे लोगों ने मुझसे इंस्पायर होकर स्कूल स्टार्ट कर चुके हैं पूरे इंडिया के अंदर. तो आई नो सो मैनी पीपल, मैनी प्रिंसिपल्स जिनके साथ मैं टच पे हूँ, उन लोगों ने बच्चों को फ्री एजुकेशन देना स्टार्ट किया.
दूसरा मेरा जो पर्पस रहा है वो हमेशा ये नहीं रहा कि मुझे 10वें बच्चों को कैसे स्कूल भेजना है, 11वें बच्चों को कैसे स्कूल भेजना है। मेरा फोकस इस इश्यू को इतना मैग्नीफाई करना है कि हम लास्ट बच्चे को भी कैसे स्कूल देंगे, क्योंकि 10वें बच्चे को स्कूल भेजने के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, बट हाउ लास्ट बच्चा भी स्कूल जाएगा या हम इश्यू को कैसे खत्म कर सकते हैं। नो वन इज ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट लास्ट थिंग। तो मैं किसी के भी ओरा को बिना डिस्टर्ब किए हुए आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सच एन ओरा कि हम लोग साथ मिलकर किसी इश्यू को खत्म करें। दिस इज व्हाट आई एम। और कल को जब ये एक इश्यू खत्म होगा तो मुझे लगता है कि हम हर एक इश्यू को खत्म करने वाले होंगे। So we need more of Ashish in this world. We need more of Christina in this world. We need more of Siddhant in this world. We need more of Meghnad in this world. We need more of people like you who are watching us today and supporting us. Because if it's not for you, nothing can change. So as I always say, you and me can work together. We can work together and make this society a better place for us to live. The same place where we live, we work. So why not make this environment, this society a better place for each one of us? Why do we judge people? Why do we talk ill about people? तो जैसे last time भी हम बोले थे कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं जब मिला बात करते हो, अरे ये मेरे बारे में बुराई क्यों करते हैं। यही है कि जिसके पास जो है वो तुम्हें वही देगा। तो एक्सपेक्ट करना और फिर एक्सपेक्टेशन हॉट होना, इट्स वेरी कॉमन। बट आप अगर मतलब खुद अच्छे हो तो दैट गुड हैज अ वे ऑफ कमिंग बैक टू यू। उम्मीद नहीं रख सकते वहां से। कोई इशू नहीं है। So that is what मतलब मैं बोल रही हूँ। तो आशीष ये बताइए आप, if you want to pass on a message to the youth, to society, to the nation, what is that message? I will only say कि हम जजमेंट को अपने अगर अंदर मार सकते तो कम से कम अपनी जजमेंट को खत्म करें सबसे पहले। मतलब द ओनली थिंग वी नीड टू वर्क अपॉन आवरसेल्फ इज द जजमेंट राइट नाउ। लाइक आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखिए राइट नाउ, या फिर आप जितने भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो लाइक ऑल दीस थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द जजमेंट। जब आप जजमेंट को जीरो करते हैं तो एक्सेप्टेंस 100 होता है। तो लाइक जजमेंट और एक्सेप्टेंस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेटिंग थिंग। तो आप जब एक्सेप्टेंस को 100 पे ले आएंगे, जजमेंट आपकी ऑटोमेटिक जीरो पे हो जाएगी। दूसरा हमारी 27 इमोशन होती है, तो लाइक वी शुड स्टार्ट एंजॉयिंग हम असली में क्या है अपने अंदर, एंड वी शुड एक्सेप्ट आवरसेल्फ कि हमारी बॉडी को ऐसा बनाया गया है, हमारे दिमाग को ऐसा बनाया गया है, या फिर हम हमारी लाइफ की जर्नी में ये दुख लिखे थे इसी तरीके से। So we can accept those things. Like अगर आपने स्ट्रगल किया है तो God wanted you to suffer in such a way so that you can inspire some people at some point of time. But आपको पेशेंस कैरी करनी पड़ेगी उस सुख और दुख के बीच के गैप को मेंटेन करने। अगर हम हमेशा यही कहते रह जाएंगे कि हमारी लाइफ में बेकार हो रहा है, तो हाँ भाई बेकार हो रहा है, बट पेशेंस तो रखो। मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। ये जो आपने अभी कहा, थैंक यू सो मच। मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि अगर मैं हमेशा क्रिप करते रहूंगी कि अरे मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बुरा ही हो रहा है, तो आपके साथ वही होगा, बिकॉज आप अच्छा ही नहीं देख रहे हो वहां पे। तो आपके लिए एक मैसेज है सिद्धांत की तरफ से कि आशीष भैया has inspired me in many ways. The walk is the reason I met him. I want to thank him for being Krishna to this Arjun. I think it's a very sweet message. Thank you so much for sending that message. अगर वहाँ पे कोई है जिनको कुछ सवाल करनी हो मुझसे या आशीष से या मेघनाथ जी से, हम यहाँ पे हैं अगले 5 मिनट के लिए। If you have any questions that you would like to ask us, please go ahead and write. You can just type the comment and we will definitely try and read out that comment to you and we will try and help. So आजकल जैसे आप यूथ को भी देखते हो आशीष जी कि बहुत सारे यूथ भटक जाते हैं। ठीक है, if you don't mind me asking, how old are you? I'm 31. 31 उम्र में भी बहुत सारे लोग भटक जाते हैं।
पर आपका जो सोच है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है यहाँ पे देखो, मतलब एक आपको आपकी स्पिरिचुअल कॉल मिलती है लाइफ में, तो हम उस स्पिरिचुअल कॉल से भटक जाते हैं कहीं। तो ऐसा नहीं कि हमें हमारी कॉल नहीं मिलती, बचपन से एंड तक हमें कॉल हमेशा मिलती है, बट लाइफ में मैटर करता है कि आप उस कॉल को एक्सेप्ट करते हो। तो लाइक जब हम पहली बार किसी से प्यार में पड़ते हैं, ठीक है, लाइक ओ दिस थिंग्स हैपन, तो हमें लगता है कि दिस इज द फर्स्ट कॉल। लाइक किसी का पहला प्यार होता है, लाइक ठीक है, फिर मे भी चीजें वर्कआउट करे ना करे, वो एक सेकेंडरी चीज है वहाँ, बट हमें लगता है कि नहीं यार वो चीज प्राइमरी है। तो सेम हर तरीके से जब हम पहली चीज सीखते हैं या फिर पहली कॉल लर्निंग सीखते हैं, बट हम धीरे धीरे उन लर्निंग्स को भुला देते हैं अपनी लाइफ में। तो जितनी एक्सेप्टेंस जरूरी है, उतना रिमाइंडर्स भी जरूरी है कि हम अपने अंदर से क्या है, अपने बाहर से क्या है, हमें क्या पसंद था, हमें क्या पसंद नहीं है। क्योंकि हम जब हर्ट होते हैं किसी भी तरीके से, चाहे पेरेंट्स आज है हमारे साथ नहीं है, या फिर कोई दोस्त था आज नहीं है, या फिर हम कैरियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, मेन चीज फिर से एक्सेप्टेंस, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग एनी हाउ। ये वो आपकी जर्नी का एक हिस्सा है, और आप सिर्फ एक पॉइंट को देख के उदास हो जाते हो, तो वो उदास होना जरूरी नहीं है। ये बहुत ही सच है कि कॉल इन दिस लाइफ, एक रिलीजियस कॉल होती है, एक स्पिरिचुअल कॉल होती है कि आप क्या चूज करोगे। यू हैव अ स्पेशल कॉल। द डे यू रियलाइज व्हाट दैट कॉल इज ऑल अबाउट, इस दिन आपको पता चल जाएगा कि वो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आप इस पृथ्वी पर भेजे गए थे। I think that day you will know the true meaning of your life. जैसे बहुत थक जाते हैं असली कॉल जानने के बाद भी। After you get to know your true call, what is it all about? You still tend to, just move away. Just move away from that call. So you need to be a little more focused. That hope should always be there in you. That faith should always be alive in you. And wherever you go, carry love in your heart. Whoever you meet, carry love in your heart. तो आप देखिए अपने आप ही ये दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी। आप अपने आप से प्यार करो, जिससे मिलते हो हंस के, किसी की हंसी के कारण बनिए आप, और आप देखिए आपको कैसे खुशी मिलती है इस जिंदगी में। मतलब एक तरीका होता है जीने का, तो जिया जाए तो मतलब कम से कम प्यार करो, आपको खुद से प्यार करो, एंड लाइक यू नीड टू एक्सेप्ट दिस। अगर आप जी रहे हो तो कम से कम प्यार करना सीखो हर चीज से। तो एक लाइफ में आप फ्लोरा, फौना, कल्चर, कस्टम, नदियां, समुद्र, पहाड़, स्पेस, गैलेक्सी, इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, वेयर वी गेट स्टक टू अ कैरियर, टू अ पर्सन, टू अ रिलेशनशिप, बट इतना कुछ है नेचर के पास, तो लाइक वी शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट। Yeah, and that's part of the reason why whenever I feel like spending some time, me time, I prefer going to nature. I prefer being there, talking to the plants. I prefer listening to that sound of the breeze. जब बारिश होती है, बारिश की वो आवाज सुनना, वो आपसे हर चीज, नेचर की हर चीज आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, पर उसके लिए you need to have the patience in you, कि आप समझ पाओ, सुन पाओ क्या कहना चाहते हैं। आप जिससे भी मिलते हो, हर कोई आपको कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। And the day you realize, the day you understand what the message is all about, and you realize you would be a meaningful. So Ashish ji, the last message that you would like to pass on to me, to Meghan ji, to the audience. Just try to involve yourself maximum, and अगर कोई भी इंसान जो सुन रहा है, if they are feeling to quit their journey, their path, so just hold on, take a pause, start, reboot yourself, and it's absolutely fine. अपने आप को कोई जज कर भी रहा है तो सिर्फ एक चीज याद रखो कि आपकी मर्जी के बिना आपको कोई नहीं तोड़ सकता। तो अपने आप को इतना तो हक दे के चलो कि आप इस जीवन के अंदर आप अपनी लाइफ के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो। तो आपकी कहानी आप खुद लिखें, आपकी कहानी के कैरेक्टर को कम से कम जिंदा रखें। कम से कम अगर आप जिंदा है तो हजारों चीजें मिल सकती है आपको, बट अगर आप अपने आप को खत्म कर लेते हैं तो मतलब है कि बहुत कुछ चीजें खत्म हो जाती है, बहुत सारे परिवार खत्म हो जाते हैं। तो इट्स ओके, अगर कोई गलती हो भी गई तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आगे बढ़े कम से कम, बट एट लीस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट। ये शो भी जिंदा लोगों की ही शो है, प्लीज अपने आप को जिंदा रखिए, और जैसे आशीष ने अभी कहा है, मूव ऑन इन लाइफ, एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को,
आपके किरदार आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता है। आप इस किरदार के सुपरस्टार हो, आप अपनी लाइफ के सुपरस्टार हो, आप अपनी लाइफ के सुपर हीरो हो। चाहे आप कुछ छोटे काम कर रहे हो या बड़े काम कर रहे हो, वो मायने नहीं रखते हैं, पर आप सच्चे दिल से कर रहे हो, वो चीज मायने रखता है। So I would like to thank each and every person who watched this show, who will be watching this show on future, and who has supported us. Thank you to all the sponsors who actually helped us. Thank you to each one for your support. Thank you for the design team for making the creative that we thank you so much. And thanks to each and every particular person out there. Thanks to the audience in the USA. Meghna ji, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. Ashish, thank you so much. We will stay connected because I assure you, Bombay में कोई भी help लगे तो I'm in Calcutta, but I have a team by the name of Color Positive. Savio Masculinus runs that. He's the founder, and it's purely for the LGBTQIA+ community. So if you need any help, I will definitely get you connected to them. For sure. जय हिंद. Thank you. आप आए इस शो में. जय हिंद. शुक्रिया.